So, good morning, students. This is Mr. Pizatitis. So, today we will look the second part of this chapter, chapter number 5 from the book of your first book, okay, for 11th class. And the introduction part we have discussed. At the same time, we have discussed the theory, sorry, explanation. Almost almost one part we have discussed, and we were discussing about what we will live for our future. That was our the topic, and now we are going to discuss about the second part of this lesson. तो अभी हम उसका लेसन का सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे देखेंगे. So you may see that very clearly about the letters, and that is very clear, and through that way you can understand, and you can read, at the same time you understand also. Anyway, so let's begin now. uh, Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book The Global Economic Prospect, points out that the earth principal biological system are four: fishes, forest, grassland, and cropland. Okay, there are four major division of economical system. Okay, within this four division, we earn money, and we manage our financial management. Okay, what are they? They are fisheries and forest, grassland, and croplands. So, who divided it? Mr. Lester R. Brown. ओके, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने इकोनॉमिकल को चार भागों से बांटा है, और उनमें से ये यही है जो मैं अभी आपको पढ़ करके बताया हूँ. और फिर साथ साथ हम यहाँ पे और एक चीज को देखते हैं कि मिस्टर सॉरी एंड दे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. हमारा जो ग्लोबल का इकोनॉमिक सिस्टम है, ये चार चीज़ें आती है. ठीक है, मछली पालन या मछली पकड़ना, या जंगल में से चीज़ों को इकट्ठा करना. ग्रासलैंड है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो पशु होते हैं वो चरते हैं, और साथ ही साथ और हमारा जो क्रॉप लैंड से उस क्रॉप लैंड में जो हम क्रॉप ग्रोइंग करते हैं, ये चार जो है ना, ये चार मेजर थिंग है जिसके चलते हम अपना इकोनॉमिकल सिस्टम को और मतलब बढ़ावा देते हैं. इन एडिशन टू सप्लाई आर फूड, ओके, दिस फोर सिस्टम्स प्रोवाइड virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum डिवाइडेड और सिंथेटिक्स. तो हमें जो भी कुछ मिल रहा है, ये सभी कहाँ से मिल रहा है? मतलब आ, ये सभी ये चारों चीज़ों से मिल रहा है, केवल इतना छोड़ करके कि जो हमारे जो मिनरल से या पेट्रोलियम थिंग से, उसके अलावा बाकी सारा चीज़ हमको यहीं से मिलता है. So minerals and petroleum derived synthesis. In a large area of the world, human claims that the system and are reaching an unsustainable level point. They are productively being impaired. When this happens, fisheries collapse, the forest disappear, grassland are converted into barren wasteland, and cropland
deteriorated in the protein and conscious and protein hungry world overfishing is तो यहाँ पे शिकायत बहुत आ रही है कि इस समय ग्रासलैंड जो है ये खत्म होता जा रहा है और समुद्र से मछली भी खत्म होता जा रहा है ना। ये सभी के लिए हम और हमारा ग्रीडी ये सब के लिए जिम्मेदार है। फिर यहाँ पे और एक बात यहीं पे कहा जाता है कि फायरवुड जो कुकिंग के लिए कुछ जगह में नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन कुछ जगह में फायरवुड इतने महंगा हो जाती है कि वो अदर चीज़ों से भी मतलब खाने से भी फायरवुड ज़्यादा महंगा हो जाते हैं। सो इसी संदर्भ में द वर्ड ऑफ डॉक्टर मैर्स the powerhouse of evolution, several pieces of life face extinction as a result of its destruction। तो ये डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है ये सभी का रिजल्ट अतिशीघ्र हमको बहुतायत रूप से दिखेगा और वैसे भी हमें दिखने भी लग गया। तो यहाँ पे येलो लेटर में जो सब देखा हुआ है आप सब देख रहे हो, ये वर्ड मीनिंग है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। I will not explain it, and you have to read it and understand yourself. Either you can do that in your rough notebook. There are four principles of biological system that form the foundation of the global economic system. According to the book of Liesl R. Brown, the global economic project fisheries, grasslands, forest and croplands, जो पहले हमने डिसाइड किया मतलब डिस्कशन किया था कि आर ब्राउन के बुक में ये चार चीज को विशेष करके अहमियत दिया जाता है कि हम और इनकम के लिए किस चीज को डिपेंड करती है। ये चार चीजें फिशरीज से ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट एंड cropland. These four system provide food and raw materials for industry. तो ये जो चीज़ें हैं हमें क्या करता है कि इंडस्ट्रीज के लिए और सबके लिए हमें क्या करता है कि भोजन वस्तु और विशेष करके रॉ मटेरियल्स ये सभी देता है और साथ ही साथ यस, तो यहाँ पे कहा जाता है कि धीरे धीरे जो मतलब फिशरीज कोलैप्स होता जा रहा है, धीरे धीरे ग्रासलैंड डिसअपियर होता जा रहा है, धीरे धीरे वैसे मतलब ग्रासलैंड जो है एक वेस्टेड लैंड और इस प्रकार होता जा रहा है। सो ये सभी जो है ना मतलब एक प्रकार का बुरी संकेत को दिखाई देता है। तो ओवर फिशिंग ज़्यादा होने लग गया, लोग ज़्यादा मछली पकड़ने लगे, तो प्रोटीन को ज़्यादा प्राप्त करने के चक्कर में ये सभी होने लग गया। ओके, इन पोर कंट्रीज जैसे कि जो सामान्य से जो गांव होता है और वो लोग अपने रोजी रोशनी करने के लिए खाना बनाने के लिए लकड़ी के सहारा लेते हैं। तो और कई जगह पर लकड़ी बहुत महंगा है, ये ऊपर भी हमने देखा था। So it has been well said that forest proceed making desert follow the world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of the 40 to 50 million acres a year of ground using of dung for burning uh, deprives the soil of an important nature fertilizer. The World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of the forest planting is needed to crop with expected fuel demand in the year 2000। तो यहाँ पे इस प्रकार यदि फॉरेस्ट वुड के ऊपर ही हम डिपेंड करेंगे तो हमारे पास इन चीज़ों के बहुत कमी रहेगा। किन चीज़ों की बहुत कमी रहेगा? हमारे पास विशेष रूप से
जंगल से जो चीज़ हमें मिलता है उन चीज़ों से ज़्यादा हमें प्रॉब्लम रहेगा। और हम उन चीज़ों से 2000 2000 आते आते हम बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। So James was the president of World Resource Institute, institute or said the other day we were saying that we are losing the forest at the arc second, but it is not closer to an arc and a half टू ए सेकंड। तो हमने थोड़ा बहुत खोया है, लेकिन एक वक्त आ रहा है जिसमें हम बहुत कुछ खो देंगे, है ना। अपने जंगल को साफ करने के चक्कर में, जंगल को काटने के चक्कर में। यहाँ पे आप कुछ वर्ड मीनिंग उस प्रकार देख सकते हैं आप, जैसे कि डिप्राइव्स यानी प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम यूजिंग समथिंग, and patrimony perhaps inherited from father or ancestor. Then after you can see there here prostrate come before in order or position। तो ये सभी अर्थ है, ताकि फॉरेस्ट एंड डेजर्ट कम फर्स्ट इन ऑल इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस। तो फॉरेस्ट एंड डेजर्ट जो है इस समय एक कंपैरिजन वाली कंडीशन में आ गया। ओके, इस समय एक कंपैरिजन कंडीशन वाली समय में आ गया। द एंशिएंट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट is constantly wearing away at the um, rate of 40 to 50 million acres a year। तो इस प्रकार अगर कंपैरिजन को देखें तो हमारे इनहेरिटेंस जो है ना 40 से 50 मतलब एकर्स जमीन चाहिए उसको सेटलमेंट होने के लिए, हमें रहने के लिए। ऑल्सो द बर्निंग ऑफ डंग एंड प्रिवेंटिंग द सॉइल टू बिकम नेचुरल फर्टिलाइजर। तो जैसे कि और बर्निंग करना, ठीक है ना, बर्निंग करना तो सॉइल को क्या कर देता है कि बचा लेता है नेचुरल फर्टिलाइजर को प्राप्त करने में। To meet the need of fuel would demand there is a need of increase the rate of forest and plantation by fivefold or by the uh, okay, by the year 2020 we are using the forest closer to an acre and a half to a second according to James Smith। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस वे वी कैन सी इट। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि फॉरेस्ट और डेजर्ट ये दोनों एक कंपैरिजन कंडीशन में आ जाते हैं। और हमारे जो एंशिएंट हेरिटेज है ये जंगल जला मतलब लगभग लगभग हम इसमें देखते हैं कि बर्निंग डंग्स मतलब जलाया जाता है। और इसके चलते कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर तो होता नहीं है, या तो फिर हमारा जो लकड़ी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, फायरवुड की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए हम लकड़ी काटने में लगे हुए हैं। लूजिंग फॉरेस्ट क्लोजर टू एन acre and half of the second। ओके, सो ये है जेम्स स्मिथ का जो रिपोर्ट है, जो कहाँ के वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 48 a constitution of India provide that the state shall endeavor to protect and improve the environment to to safeguard the forest and wildlife of the country। But what case
cages caused to endless anguish is the factor that laws are never respect nor enforced in India. तो आर्टिकल 48 में प्रत्येक स्टेट को पूर्ण रूप से ये स्वाधीनता दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, वो विशेष रूप से अपने राज्यों का जो मतलब वाइल्ड लाइफ है उसको वो बचा करके रख सकते हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार कर सकते हैं। तो instance the constitution say that costume or untouchability and bonded about sea be abolished and abolished at the same time. नाउ यू में सी दैट ये जो आर्टिकल से हमको पूरा अथॉरिटी दे रखा है कि हम किसी भी तरह से क्या कर सके कि हम अपने जो हमारे जो स्टेट में जो भी मतलब फॉरेस्ट लैंड है उसका हम क्या कर सकते हैं, बचा सके। एक रिपोर्ट इस प्रकार दिया जाता है कि उस रिपोर्ट में और इस प्रकार बताया जाता है कि लगभग 3.7 मिलियन एकर्स ईयर मतलब 3.7 मिलियन एकर्स लैंड जो है और हमारे खुद की ज़रूरत के लिए काम पे आता है पूरे साल भर में। सो large area officially designed as forest land as forest land are already virtually traceless. Thus, actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government स्टैटिस्टिक। तो गवर्नमेंट जिस स्टैटिस्टिक को देता है लगभग उससे 8% ज़्यादा जो क्या हो चुका है, फॉरेस्ट का डिक्रीज हो चुका है, फॉरेस्ट कम हो चुका है ना। और पॉपुलेशन का बढ़ोतरी ज़्यादा होता है तो इसीलिए लोगों के लोग क्या करते हैं कि वे फॉरेस्ट को क्या करते हैं कि कट करके डिफॉरेस्ट करके वहाँ पे वो लोग थोड़ी समय मतलब अपना रहने और अपना गृह मकान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए क्या आंकड़ा दिया गया है कि 3.7 मिलियन एकर्स हर साल में इस प्रकार खर्च भारतवर्ष में होता है। तो इसके भी एक मतलब क्या कह सकते हैं हम, एक सतर्कता हमारे जीवन में बना रहना जरूरी है। तो थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही है और फिर कल हम उसका थर्ड पूरा जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम पूरा करेंगे।